एक शुक्रिया अदा के तौर पे एक टोकन आप लोग हमारे गेस्ट को देना चाहता हूँ HOD की तरफ से। मैं I just want a small token for all of you. I have given it to Sunita. मैंने सबके अंदर नाम डाले, so you don't have to worry. Just a small token of my love from Rajasthan with handicraft. बाकी सबके नाम, हाँ सबके नाम लिखे। This will be in your goodie bag, everybody's goodie bag. We will distribute in the evening. Thanks a lot, Shikha. Just a minute, you have to. Sangeeta will stay back and spend the rest of the day with you. I have to go for some work. So thank you so much. Yeah, whatever you say, Amanji, till you throw me out. Yeah, absolutely. I request Devani Kotika to present the love memento from AGM to Sanju. I'm sorry, I want to please say one thank you to Victor. Thank you so much. I request Manisha Yashwant to present the moment to Sangeeta ji. Ma'am, cross. Look here, please. Look here. There you go. Thank you. I will read this out because people don't know what to do. चश्मा लगाना पड़ेगा What we are given this memento basically, amazing Hindi film music AGM. We are immensely grateful for your august presence in the AGM Week together as a guest of honor. We will cherish these wonderful memories and experience forever. Thank you. Mumbai 30th today. We'll have a group photograph first. For the group photograph, only ladies first with the guest, and then because we will not accommodate with our. The ladies can have. Yes, she is also the member. She is also a member. Only one, ना चारों तरफ घूम के बीच में कर रही है। Why not? कहते हैं divide and multiply. We will just cover the banner. हाँ। Yeah, ready? Everybody look at me. I just wanted to sing. Because I don't have any presentation like you had. So I thought that we Please, gents. Gents, number please come. Yes, members for the photographs, please. Okay. Ready? Sanju. Boroka. हाँ. Ready? 1 second, one more. Thank you so much. एक मिनट एक wait. इतना ना. Second session is going to start. Many of you know that the session is regarding Anil Biswas ji's music. Many might not be very familiar or not deeply knowing the Anil Biswas era. So that is some kind of oldish era compared to the Madan Mohan's era or some other new music composer compared to that lot. Because he started in 1930s and then went up to 1960s, mostly 1950 end basically. So might be the songs are not too familiar with you. Though they are fantastic songs and he shaped the Indian film music in those eras, in those years. But those might not be very popular songs. But this session will be more studious kind of. So be patient with my hearing because normally what Sanjuji told that less heard songs don't get much appreciation. So as a music lover, listen keenly what you have not heard because what we hear prominently is a day-to-day affair to us.
but listen to this song, the talk regarding those compositions which were not very familiar, which were not heard. But this was the era where the Indian Hindi film music has been shaped up, and how he transited from the 1930s to 40s and 50s. That he retired on his own terms. Though he worked till after बोले हम लोग सीरियल देखी होगी, हम लोग सीरियल का म्यूजिक इन्हीं का था, कई लोगों को पता भी नहीं है. उन्होंने सेल्फ रिटायरमेंट ले ली थी 1960s में. तो वो एरा है. मैं इसलिए मैं कह रहा था कि हो सकता है कि ट्यून्स ज़्यादा पॉपुलर ना हो, ज़्यादा फेमिलियर ना हो, but listen to the rest because this session will be a little shorter. We will wind up this to 5 or 5:15 until then. Okay? And कई लोग ऐसे भी हैं कि जो कि बहुत ही प्यार करते इस पर्टिकुलर सेशन, पर्टिकुलर एरा से. तलस महमूद का जो ये होता है, मुकेश को इन्होंने डेब्यूट किया था, जोराबाई अम्मा ने उनका डेब्यूट इन्हीं से हुआ था. लता मंगेशकर के जितने गाने की बारकाइयाँ हैं, ब्रीदिंग टेक्निक से उनके पॉज लेने का टेक्निक है, ये सब चीज़ें उन्होंने सिखाई थी. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए किस सेक्शन के बारे में हम कहने जा रहे हैं. ओके, तो आई विल कॉल द गेस्ट. बचा के रखना. कई लोगों ने तो डाल दिया आई कार्ड. आई कार्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जो गुडी बैग मिलेगा या रिटर्न गिफ्ट मिलेगा वो आई कार्ड के अगेंस्ट ही मिलेगा. मैं मजाक नहीं कह रहा हूँ. इसके बावजूद भी एक बहुत जरूरी चीज़ है जो कि मैं अभी नहीं बता सकता आप लोगों को. अपना आई कार्ड संभाल के रखिए. आई कार्ड का 6 बजे के बाद बहुत अहम काम है. इस पर आई कार्ड नहीं होगा शायद बहुत सारा फन मिस कर जाएगा. फोटो नहीं कह रहा हूँ, फोटो नहीं है. आपके आई कार्ड बचा के रखिएगा, आई कार्ड का काम लगेगा, आपको खुद लगेगा एक्चुअली आई कार्ड का काम. तो प्लीज सीरियसली बचा के रखिएगा आपके पास. चाहे गले में नहीं डाल चलेगा, लेकिन आपके पास बचा के रखिएगा, क्योंकि 6 बजे के बाद जो सेशन चालू होगा उसमें आई कार्ड का बहुत काम है. हर एक काम 20 मास्टर के बाद आई कार्ड. I came as a chamcha in number 1 and a chamchi in number 2. मैडम भाई मैं वो ठीक हूँ. अब यहाँ So we are starting the second session. As you all of know, the second session is regarding the, in general, the journey of Hindi film music, or the history of Hindi film music, emphasis on Anil Das music. As you all of know, we are blessed with the Anil Das daughter herself, the most authenticated source on the Anil Das music, Shikha Bora Viswas. Through elaboration, we will go through the journey of Hindi film music as such, and special emphasis on the Anil Das music, how he shaped up that era. How he shaped up that era, how he contributed this the transition phase of the music for Bengal music, like RC Puran, second era in the 30s, 40s, and then 50s, and somewhat in 60s. We'll go through elaborately the session. I request Bandana Amre to welcome the guest with the flowers. We'll welcome Shikha Bora ji. Along with Shikha Bora ji, we are grateful that Mr. Anand Bahal, a known singer in the Mumbai circuit and in the Hindi film music circuit, is there. He specially came for today's session. I think you are based in Delhi. No, he's based here. Mumbai. But yesterday she mentioned and he readily came. I'm very thankful to him. He will sing live some of the lines of the Anil Das music which he will refer to. That's a treat to us. I request Ira Kulkarni to greet Mr. Anand Bahal with flowers. I request Ritu Verma, who has been coordinating all this session basically and finally the guest, to introduce Shikha Bora ji in formal terms. ये माइक को डालती Shikha Di, I don't think she needs introduction. Why not? Shikha Bora Viswas needs no introduction. We
is the daughter of none other than the great Anil Biswas, who is known as the father of playback singing in Hindi cinema. Shikha grew up in an atmosphere where she listened to poetry and music from morn to night. A young Lataji visited her house almost every day for rehearsals, and besides music classes and rehearsals, Anil Da used to cook for his little student. Talat Mahmood Saab, Madan Mohan Ji and Manna De Saab were like family, and their intellectual talks and rehearsals spontaneously made way to her subconscious mind. As Shikha grew up, she shared a deep relationship with music director Ravi Saab. She shared a very great friendship with him, and during this period, she got a cultural metamorphosis, and she started attaining enlightenment towards the creativity of this amazing music industry. Jackie Chan Ji, who was a musically evolved soul, he introduced her to poetry. Yes, shairi basically. She had umpteen producers and directors following her to sign her for their films as the lead heroine. But even Shikha does not remember now why she turned down so many offers. And it is interesting to know that many people of the industry compared her with Sadhna Ji, the then heartthrob of millions. Her married life kept her away from the industry, as her husband was a defense officer, and she was culturally deserted for many years, as she stayed in Gandhidham for 11 years. For 11 years, then I was in the forces before that. Do I need a mic even? Yeah. Hello. No, she asked me questions and reply to that. So no sooner than her husband moved to Delhi, her creativity evolved with effervescence. She started a Delhi-based organization that conducted musical programs based on Hindi film music. It has been 11 years and there has been no looking back. She hunts for new talents and provides them a platform, and many of them have made their way to Mumbai and to the Hindi film music industry. To cut short, she is a treasure trove of talent. She is just awesome when it comes to poetry, scripting, comparing, or for that matter, acting. That eloquent dialogue delivery. She at times admits she cannot sing, but listen to her one-liners, she never goes out of tune. She never misses on a musical note. She admits her scale is low, but listen to her one-liners, she will sing with all the nuances of an accomplished singer. And I must tell you, Didi, that she was supposed to sing Sabha Se Ye Keh De in our last battle. I did. Yeah, and But I did finally. Oh, you did? she did, and she will request her that she I couldn't sing. resist it, so I sang finally. So yes, you will sing at least one line for us. We welcome her here on behalf of all of us. I welcome her here, and she will steer us through the history of Indian film music, which she has dispensed through her own eyes. Thank you for coming in, and thank you so much, Anand, for accompanying. Thank you, Ritu, for this very eloquent and I think a little exaggerated image of me. I'm just a simple housewife basically. And but I want to thank her. मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ. I'll speak Hindi, English दोनों चलेगा ना? बने मराठी पर बोलना चाले ना. So I have to first thank Ritu कि उन्होंने मुझे इस ग्रुप से यानी संबंधित किया और हेमंत से मेरी मुलाकात हुई. So thank you both of them. First I want to thank Ritu for having brought me from Delhi, literally and metaphorically, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है. आप लोग प्लीज इस बात से मेरे साथ सहमत रखना कि I've got fever और बहुत यानी बैड थ्रोट इन्फेक्शन रहा है, तो गले में अभी भी दर्द है. चलिए आप ये समझ लेना, बाद में आप लोग कहिएगा शिखा जी की बड़ी दर्द भरी आवाज है. केश जी के कहते थे ना, पेथोस उनके गले में इतना दर्द. आज वो सोच शायद आप मेरे गले में भी पाएंगे.
सबाज ये कह तो गाने के लिए कह रही तो बिल्कुल रफी साहब की आवाज में गा दूंगी ना। और बहुत आभारी हूँ हेमंत जी का स्पेशली कि आप जैसे लोगों से मुझे मुखातिब किया है आज। यानी मुझे लगता है कि आप इतने गुणी और ज्ञानी लोग हैं, शायद मुझे आप लोगों से कुछ सीखना मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। क्योंकि सच बात तो ये है, ज्ञानी मैं इसलिए कह रही हूँ, आई ऑल्सो डोंट नो मच। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप मुझे अनिल विश्वास के बारे में कुछ बताएंगे, जो आई एम श्योर आप करेंगे, क्योंकि इसकी एक वजह ये है क्योंकि जब बाबा अपना बहुत ही प्रोडक्टिव और इनोवेटिव काम कर रहे थे शुरू में, 30s का जमाना था वो, तो मैं तब पैदा भी नहीं हुई थी। और जब वो अपने क्रिएटिव पीक पर पहुंचे थे, मैं बहुत छोटी सी थी, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग वो जमाना, वो दौर कुछ अलग था कि बच्चे और माँ बाप का के बीच काफी फासला होता था। हम लोग वी वर नॉट अलाउड टू कम इनटू द हॉल आल्सो। तलत साहब के, मुकेश जी के, तो हम लोग दरवाजे के बीच में से झांकते थे, हाँ, लाइक बैट्स वी वर हैंगिंग ऑन टू द डोर कि अंदर क्या हो रहा है, कुछ संगीत चल रहा है, कुछ बातचीत चल रही है, बट हमें अलाउड नहीं था अंदर जाना। तो इसलिए हम लोग बहुत सारी चीजों से वंचित रहे हैं कि जो कुछ घर में घट रहा है वो हमें पता भी नहीं था कि आगे जाके ये इतिहास बनेगा। और उस इतिहास पे आप जैसे लोग और हम जैसे लोगों को भी इतना कौतूहल होगा या इतनी जिज्ञासा होगी कि अब मुझे खेद है, बड़ा अफसोस है कि हमने अपने बाबा के साथ उनके संगीत के बारे में कुछ बातचीत ही नहीं की, कुछ चर्चा ही नहीं की। हमारे लिए ऐसा था कि ये उनके लिए एक महज एक नौकरी है, और वो खुद भी यही कहते थे। जब आखिरी दिनों में, आई थिंक फ्यू डेज बिफोर हिज डेथ, मेरे घर आए थे, तो मेरा कंप्यूटर पड़ा था, तो मैंने उन्होंने ऐसे बोला कि पता नहीं शिखा आजकल मुझे लोग याद भी करते कि नहीं, जो इतने साल हो गुजर गए। आई एम अ विंटेज पर्सनैलिटी। तो मैंने कहा बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आपके ये कितने इंटरनेट पे मेंशंस हैं, तो वो खुद ही चकित हो गए कि आई कांट इमेजिन। मुझे लगा कि लोग कुछ भूल गए हो। मैंने कहा आपको लोग कैसे भूल सकते हैं, आपने इतना प्यार दिया है उनको, इतने अच्छे नगमे दिए हैं कि आज वो सुन के खुश होते हैं, कहने की उनकी आत्मा खुश होती है कि तो दे यू कांट बी फॉरगॉटन दैट इज। उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत एक बात कही जो आज तक मुझे याद है और मुझे काफी छू गई वो बात की। मुझे लगता है कि मैंने अगर एक दिल को भी प्रसन्न किया है तो मेरी जिंदगी सफल, मेरा काम सफल। So, I said it's not one heart, it's 1 million hearts you have touched. So, because that is the kind of music they made. आज मदन जी की बात हुई है, उनके संगीत की चर्चा हुई है, तो ये लोग उससे संगीता से मैं कह रही थी फोन पे कि they were mavericks, all of them. They created music for their own pleasure. उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये गाना कि सुपर हिट बनेगा या कितना सफल बनेगा। उन्होंने अच्छा काम किया, और यही सब बाबा भी कहते थे मेरे लिए तो ये एक नौकरी है, यानी मैं काम करता हूँ, गाना बनाता हूँ, प्रोड्यूसर को देता हूँ, आगे वो गाना पब्लिक का हो गया है, लोगों का हो गया, मेरा तो रहा ही नहीं कुछ। और ये लोग कभी अपने गीतों के बारे में ये नहीं कहते थे अरे मेरा वो सुपर हिट गाना, लेकिन उन्होंने दे जस्ट लव द क्रिएटिविटी एंड दे मेड द सॉन्ग फॉर देयर ओन प्लेजर आई थिंक। सो दैट्स व्हाई दे वर नॉट कमर्शियली एक्टिव। जैसे मदन जी भी अपना कभी ये नहीं करते थे कि हमारा खुद का प्रचार किया कि रेवेन्यू फुल मारे या कोई पब्लिसिटी क्रिएट की। जैसे बाबा भी he was a very simple soul, so he never tried to create some publicity for himself। और आई थिंक यही एक वजह है कि उनका संगीत काफी हद तक लोगों तक पहुंचा नहीं। सो आई थिंक बिफोर मैंने एक पॉइंट यहाँ लिखा है कि इसीलिए हम लोग वाकिफ भी नहीं थे कि एक दिन जैसे ये इतिहास बनेगा, एंड सो मेनी पीपल विल बी इंटरेस्टेड कि वो गाना कैसे बना और उसका बैकग्राउंड क्या था। और हम लोगों ने भी बड़ी कैजुअली लिया। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कि आई थिंक बिफोर वी शिफ्टेड हाउस इन 1970 टू पाली हिल, हमने सारे ग्रामोफोन रिकॉर्ड 78 आरपीएम के कबाड़ी वाले को दे दिए फ्री में। कैन यू इमेजिन, आज हम खुद उन गीतों को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। और मैंने कहा कि मैं जानती नहीं हूँ ज्यादा संगीत के संगीत के बारे में, आपसे कुछ सुनना चाहूंगी उल्टा एंड में। जैसे रितु ने बताया was married to a defense officer, तो यानी कि जब मैंने संगीत समझना शुरू किया, समझ लीजिए जैसे उनका रवि और जयकिशन के साथ, I liked their music, I didn't know my father's music at all। So कभी बाबा भी को पूछते थे which is your favorite song,
Because I grew up on, Dil Apna Preet Parai and Chauki Ka Chand. So that was the music I knew. And बाबा का जो म्यूजिक था हम लोग तो हंसी मजाक उड़ाते थे. इनके बड़े अच्छे दोस्त थे, ट्राइव था इनका ट्राइवरेट, रोशन, प्रेम धवन और बाबा. और ये लोग हर संडे को मिलते थे और उस दिन संडे को ना बच्चों को बताया जाता था कि आप लोग हमारा मनोरंजन करें. तो हम लोग फिर बोलते थे मेरे भाइयों में कि अब आपको हम एक गीत सुनाने जा रहे हैं जिसका संगीतबद्ध किया था अनिल बकवास. तो बाबा उसको ट्राई नॉट टू लाफ, भैया सीरियसली बात हो रही है. तो हम गाते भी थे, धीरे धीरे जा रहे बादल, धीरे जा रहे बादल, धीरे धीरे आ मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर गुल न मचा धीरे. तो इस तरह मजाक उड़ाते थे उनके गीतों का. क्या पता था कि ये अपने जमाने का इतना मशहूर गीत है जो जिसने सारी नेशन को बहलाया हुआ है. तो वी वर नॉट अवेयर ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग. सो मेरी शादी हुई तो डिफेंस सर्विसेज में, जहाँ पे क्या वजह है मुझे नहीं पता, कि फिल्मों को बहुत डिग्निफाइड तरीके से नहीं देखा जाता था. सब पिक्चरें देखने जाते थे बड़े शौक से, मगर ये था कि फिल्मी बातें करना या फिल्मी कोई गीतों को भी सुनना ये थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता था. मेरे घर में जो संगीत बजता था, मेरे हस्बैंड का शौक, भीमसेन जोशी और पन्नालाल जी की बांसुरी बनाने की, चिट्टी बाबू का मटका, ये सब चीजें बहुत क्लासिकल चीजें बजती थी. और डेढ़ में जाके मेहदी हसन, गुलाम अली, ये सब फिल्मी गाने नहीं बजते थे. 40 साल तक मैं फिल्मी गीतों से वंचित रही हूँ. आप सोचिए, आज मैं खुद कभी हैरान होती हूँ कि अरे मुझे ये गाना कैसे आता है, इसके वर्ड्स कैसे आते हैं, इसका इंटरलूड कैसे मालूम है. मैं खुद अपने आप से हैरान होती हूँ. लगता है यहाँ पे सबकॉन्शियस में कुछ बैठ गए होंगे बचपन में, वो अब जाके खुल रही है ताले जाके. So let's cut to 2003. बाबा का 89th बर्थडे आ रहा था जुलाई में. तो मैंने उनसे कहा कि बाबा ऐसे करते हैं कि इस बार योर स्टेपिंग जो 90th ईयर बहुत बड़ा कुछ एक माइलस्टोन है. सो लेट्स सेलिब्रेट विद अ पार्टी. और मेरे कुछ दोस्त हैं वो गाते हैं, कैसे गाते, बड़े खराब गाते हैं. आज मैं सोचती हूँ पर तब मुझे बड़ा गर्व था उनके ऊपर के गाते हैं. तो हम आपके गीतों की प्रस्तुति आपके सामने हम पेश करेंगे. तो बोले अच्छा ठीक है, तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेगी तो मैं फिर ढाका नहीं जाता हूँ, वहाँ भी निमंत्रण है, पुणे में भी इन्विटेशन है, तो वहाँ नहीं जाऊँगा मैं. यू सेलिब्रेट माई बर्थडे द वे यू वांट. तो मैंने कहा ठीक है. So let's talk about what songs we're going to present. तो बोले कि अच्छा ये गाना जरूर रखना, उसमें वो गाना जरूर रखना. कौन सा गाना? अल्लाह भी है मल्ला भी है. ये कौन सा गाना है? मैंने कभी सुना ही नहीं है. कि क्या बात करी, तुमने ये गाना नहीं सुना मेरा? मैंने कहा नहीं, ये कौन सा गाना है? आप यकीन कीजिए उस वक्त जो मेरा ज्ञान था अनिल विश्वास के बारे में, वो थैंक्स टू संजीव कोहली, जब ये थे HMV में, उन्होंने गोल्डन कलेक्शन का शुरू किया था सिलसिला. तो 10 या 12 गाने जो उस गोल्डन कलेक्शन कैसेट में थे वही मैं जानती थी. हाँ, सीने में सुलगते हैं अरमान, आइए मत वाले, ये गाना है, वो दिन कहाँ गए बता, ये सब मुझे मालूम था. धीरे धीरे आ रहे बादल तो बचपन से ही पता था, लेकिन और कोई गीतों के बारे में मेरी को कोई जानकारी नहीं थी. So I felt like such a fool. I said, बाबा दो मुझे कैसे, कितना सुंदर गाना है. उन्होंने जब गा के मुझे सुनाया ये गीत, इतने माधुर्य से गाया at the age of 88. I said, बाबा this is beautiful. Give me this. I'll teach it to somebody and they'll sing. तो कहते बेटा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए. क्यों? तो बोली मेरे पास जो कुछ भी था मैंने लोगों को बांट दिया. I'm 88 now. I don't know how long I live. तो मैंने सब अपना म्यूजिक बांट दिया. मेरे पास एक चीज भी नहीं, और मेरे पास उस गोल्डन कलेक्शन के अलावा और कुछ नहीं था. तो 2003 से मेरी खोज शुरू हुई टू डिस्कवर अनिल विश्वास. सो आई एम दैट जूनियर कंपेयर टू यू पीपल. कहाँ से गाने मिलेंगे? तो बोले बॉम्बे में एक तुषार भाटिया है संगीतकार, उसके पास मेरा काफी कुछ है. डॉक्टर प्रकाश जोशी है. तो बोले कि उनके पास जाके तुम ढूंढो कोई गाने. तो मैं निकल पड़ी, मैं बम्बई आई, एक सफर पर निकल पड़ी, एक वॉयज ऑफ डिस्कवरी लिटरली.
तो उन्होंने मुझे कुछ खास मदद नहीं की। तो फिर मेरे छोटे भाई उत्पल, वो एक संगीत गाते, अमर उत्पल के नाम से संगीत देते थे, उन्होंने मुझे बताया कि अभी आजा मेरी जान मेरी एक फिल्म है रिलीज होने वाली है, उसमें मैंने एक नए लिरिसिस्ट को मौका दिया है, उसका नाम है मनोहर अय्यर, तो उसके पास तुम्हें काफी कुछ मिल जाएगा। तो मैंने मनोहर अय्यर को फोन किया, मैंने कहा मुझे कुछ मेरे फादर के गाने चाहिए, तो ही सेड प्लीज आप आ जाइए। एंड आई एम थैंकफुल टू हिम टिल टुडे and throughout the rest of my life for having brought me face to face with my father's music, because he gave me 3 cassettes filled with only Lata Mangeshkar sings for Anil Biswas, and I brought those 3 cassettes home and I told my younger brother, Munna, ये 3 कैसेट मिले, तो कहता चलो दीदी सुनते हैं क्या है। तो हमने कैसेट लगाए, रात के 9 बजे शुरू की, सुबह 5 बजे तक इन लैंप लाइट हमने उन गीतों को सुना, उन गीतों का सारा जो जादू था वो अपने दिल में उतारा। और मैंने कहा मुन्ना सुबह हो रही है और साथ में एक डिस्कवरी और एक रियलाइजेशन मुझे हुई, हमें पता ही नहीं था यार हमारे फादर ने इतने खूबसूरत गाने बनाए, हमको पता ही नहीं है हमको व्हाट सॉर्ट ऑफ चिल्ड्रन आर वी, नॉट इवन अवेयर। उस दिन के बाद से मैंने एक्चुअली एक अध्ययन करना शुरू किया, एक अभ्यास शुरू किया बाबा के गीतों का, कि कैसे गाने उन्होंने बनाए, किस तरह बनाए। आई वेंट बैक टू दिल्ली, एक दो बातें उनके साथ मैंने की गीतों के सिलसिले में, कि बाबा ये गीत कैसे बना। तो बोले कि इस तरह ऐसे मैं करता था कि पहले आई यूज्ड टू ऑलवेज टेक द मीटर ऑफ द वर्स ऑफ द सॉन्ग, और उस मीटर के हिसाब से मैं रिदम पहले बैठाता था, और रिदम के बाद में उसकी जो तर्ज है, वो धुन है, उस पर सुपर इम्पोज करता था। सो वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी टेक्निकल वे ऑफ स्टार्टिंग टू इम्पोज हिज क्रिएटिविटी ऑन टू द लिरिक्स। गाने की सिचुएशन को देखकर उसको मद्देनजर रखते हुए यानी एप्रोप्रिएट राग का इस्तेमाल करना। कि आप लोग में से काफी लोग आई थिंक जानते होंगे, आई बीन टॉकिंग टू हरीशचंद्र पाटिल, राजन जी सब, कि काफी वाकिफ थे लोगों को, तो आई वुड लाइक टू नो दिस फैक्ट दैट ही ऑलवेज वाज द राइट राग फॉर द राइट टाइम ऑफ द व्हाटएवर सिचुएशन वाज। तो ये सब थोड़ी बातें की, एंड इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट 5 weeks बिफोर his birthday he suddenly passed. So we didn't have that program, लेकिन तब से मैंने कहा कि I must learn more about my father's music. So even till today, I think I have not discovered him enough. क्योंकि अब मैं सुनती हूँ, हर बार मैं उनका कोई चीज सुनती हूँ, जब दूसरी तीसरी चौथी बार भी सुनती हूँ, उसमें मुझे कुछ नया नजर आता है. Now I'm appreciating him as a music lover, like anybody else, like you, people listen to other music directors. I listen to him like, and I'm studying the nuances. So I'm also a student like you. I'm a music lover like you. So बस हम सब, I think हम सफर है, सफर है. So I think before I talk about the work, what contributions Anil Da did to film music, what changes he brought, it's just important to have a little short. I'm not going to a long history and boring all of you because I'm sure you all know these things also. But the scenario into which he walked and what changes he made thereof. तो जैसे आप सब जानते हैं 1931 में पहली टॉकी आई थी आदमारा, और आदमारा में न सिर्फ it was a big, sort of revelation for the country because उसमें सिर्फ ध्वनि नहीं थी, सिर्फ साउंड नहीं था, एज इन डायलॉग थे, मगर साथ साथ में वेरी अनएक्सपेक्टेडली गाने भी थे. और गाने, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट 2 फिल्में आई थी, शिरीन फरहाद और इज्जत सभा, जिसमें आई थिंक 42 songs and 69 songs respectively, there were so many songs in the film. And the popularity of those songs has set one very, very important foundation in our Indian cinema. And that is that किसी भी फिल्म में कोई कहानी हो या नहीं हो, कोई बढ़िया डायरेक्शन हो या नहीं हो, कोई जबरदस्त एक्टिंग हो या नहीं हो, मगर गाने जरूर होने चाहिए. और वो परंपरा आज तक चल रही है.
that nothing has changed since 1931. क्योंकि मुझे लगता है, और जैसे आपको भी ये महसूस होता होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे आई थिंक जिस्म में खून की जगह सरगम रहता है. All of us, for every occasion we have a song, and I think for me every situation में मैं कोई गाना ही निकाल के गा के to appraise the situation. So that was a scenario, 1931, and that was the year that Anil came from his native Odisha to Calcutta. Running away from the police से भागते हुए, क्योंकि ओडिशा में उनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1914, और आपको ये शौक लगेगा सुन के कि उन्होंने कभी संगीत की तालीम हासिल नहीं की है, कभी क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखा है. उनकी माँ सीखती थी, तो जब माँ के गुरुजी आते थे तो वो चुपके से दरवाजे के पीछे छुप के, वो परंपरा बच्चों ने भी करती, क्योंकि दरवाजे के पीछे छुप के वो सुनते थे माँ के सबक. तो इधर माँ ने पकड़ लिया कि पीछे क्या कर रहा है, मुझे मैं सुन रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है. तो यही रुचि देखकर फिर माँ ने उनको सिखाया, जो कुछ वो गुरुजी से सीखती थी उन्होंने अनिल दा को और उनकी बहन पारुल को सिखाया. वो लोग अपनी माँ से सीखे हुए, और साथ में बंगाली होने के नाते आई थिंक ऑल बंगालीज आर वेरी कल्चरली इन्फ्लिक्टेड विद द लव ऑफ म्यूजिक. रविंद्र संगीत तब नया नया शुरू हुआ था, और ओडिशा के जो द पार्ट ऑफ ईस्ट बंगाल एज दे कॉल्ड काजी नजरुल इस्लाम, तो ये सब नजरुल गीती और रविंद्र संगीत पे पले बड़े हैं. और वैसे भी बंगाल का जो लोकगीत और ये बाउल भटियाली कितना यानी कि इफेक्टिव और सुंदर है, ये सब चीजों पे वो पड़े हुए. 1931 when he came to Calcutta, तब पुलिस से भागते हुए आए थे, क्योंकि 11 साल की उम्र से ही फ्रीडम स्ट्रगल में वो ज्वाइन कर चुके थे. And actually a strange thing happened that why I'm pointing out this is that some of the composers, they are not all technically instructed, some of them are divinely inspired also. All the composers of the golden era. 4 साल की उम्र में उन्होंने तबला बजाया, फर्स्ट तबला recital at the age of 4, and by 11 he had mastered the tabla. That's what he knew from his music. 17 साल की उम्र में he had to run away from the police, क्योंकि 6 बार तो जेल जा चुके थे, और मेट्रिकुलेशन एग्जाम उन्होंने अपना जेल से ही दिया था सारे पेपर्स. So then he had to run away because the police was after him. तो कलकत्ते जैसे बड़े शहर में आके अपने आप को खो जाना, that was वो जरूरी था. और वहाँ पन्नालाल घोष उनके बचपन के दोस्त थे, उन्होंने उनको काफी सहारा दिया, मगर स्वाभिमानी थे अनिल बिस्वास. तो उन्होंने सोचा कि तुम्हारे सहारे पर नहीं जीऊंगा, मैं कुछ काम जो भी मेरे का काम करूँ. तो उन्होंने ढाबे में बर्तन तक धोए, झूठे बर्तन तक धोए हैं, और लोगों के घर म्यूजिकल ट्यूशंस कुछ देते रहे बंगाल फोक, जैसे श्यामा संगीत वगैरह जो होता है, और पोस्ट ऑफिस के बरामदों में उन्होंने रातें गुजारी अपनी. Which is the story of a lot of the music directors. I think they are spending their nights on the footpath. Nurshad साहब है, रवि जी हैं. We went through all that, and then he got a pakka job in a theatre company called Rang Mahal Theatre, जहाँ उन्होंने काफी हैट्स डॉन की. उन्होंने संगीत भी बनाया, कंपोज किया, गाने भी गाए, एक्टिंग भी की. एक्टिंग का बड़ा शौक था उनको शुरू से, अपनी कुछ फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की है बिसाइड सिंगिंग. वो 4 साल आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग लेसन फॉर हिम टू लर्न अबाउट द टेक्निक्स ऑफ म्यूजिक, टू लर्न अबाउट द शैलीज ऑफ म्यूजिक के ख्याल क्या होता है या ठुमरी क्या होती है. तो ये सब चीजें उन्होंने थिएटर में रहते हुए अपना बाइक किया है. एंड उसी दौरान उन्होंने मेगाफोन कंपनी ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान रिकॉर्ड्स, तो ये ग्रामोफोन कंपनीज थी जो जिसके साथ वो जुड़े थे, कुछ काम करते थे अपने हाइनेस में जब प्लेस नहीं होते थे. तो वहां पे उनकी मुलाकात के.एल. साइगल और एस.डी. बर्मन के साथ भी हुई थी. उन्होंने काफी कुछ काम के साथ किया हुआ है राइट इन दोज डेज 30s. फिर एक डायरेक्टर थे हिरेन बोस के नाम से, जिन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है. न्यू थिएटर से जमा हुआ था, आपको पता है, तो यहाँ पे आरसी बोरार और पंकज मलिक इतने जमे हुए हैं कि तुम एक असिस्टेंट के सिवा तुम्हारा कुछ इसमें फ्यूचर नहीं है.
तो ऐसे करते कि चलिए हम लोग बम्बई चलते। तो इस तरह हिरेन घोष के साथ वो 1934 में बम्बई पहुंचे। 1931 में जब आलम आरा की मैंने बात की तो एक चीज मैं कहना चाह रही थी कि बिसाइड द पॉपुलैरिटी ऑफ म्यूजिक, उस समय फिर एक नए किस्म के संगीत का उत्पन्न यानी हुआ, जिसको कहते हैं चित्रपट संगीत। इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज कि चित्रपट संगीत पे बहुत सारी शैलियां वो अपने दामन में लिए हुए थे। भजन भी है, गजल भी है, कव्वाली भी है, सब कुछ है, क्लासिकल, फोक। तो इट वाज अ वेरी पॉपुलर काइंड ऑफ जॉनर जिसमें आम सड़क चलने वाला भी वो गाने गा सकता है। That is why a lot of people who are not technically very qualified could also, do something in this line. So my father was probably one of them. So 1934 में जब बम्बई आए तो यहाँ पे एक नया, sort of field है। तो न्यू थिएटर्स was a very old and established studio. तो इधर काफी सारे studios थे। तो यहाँ पे और मौके मिलेंगे काम के। So he played तबला for a while for झंडे खान। और 1934 में 35 के बिगनिंग में उनको अशोक घोष के साथ एक असिस्टेंट यानी म्यूजिक डायरेक्टर का काम मिला। और उस फिल्म का नाम था मनमोहन, जो सागर मूवी टोन एक बहुत बड़ी स्टूडियो बना रही थी। और उस फिल्म में उन्होंने 1935 में एक गाना इंडिविजुअली कंपोज किया था, जो था कि तुम्ही ने मुझको प्रेम सिखाया। और ironically or fortunately or unfortunately for the other music director, वो गाना सबसे पॉपुलर हुआ उस फिल्म। तो immediately 1935 से लेकर उनको इंडिविजुअल असाइनमेंट्स मिलने लगी, भारत की बेटी, धर्म की देवी। और उनका एक भजन था उस वक्त, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान। आप लोग शायद इससे वाकिफ होंगे क्योंकि आई थिंक रेडियो सलोन पे जब भजन का प्रोग्राम होता था कई साल, दिस Bhajan was the signature tune for that program. So, it was sung by Ratan Bhai. I don't know if it's the same Ratan Bhai who was Shobna Samar's mother. इस बात पे काफी वाद विवाद हुआ है। अगर कोई जानता है तो बता दे। It was the same lady who was, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि रतन भाई एक एक्ट्रेस हो गई थी लेकिन सिंगर थी कि नहीं, वो मुझे नहीं मालूम। शोभना समर की जो मदर थी तनुजा की। बट उस फिल्म के बाद सागर मूवी टोन then signed him as an individual music director। और महबूब खान जो थे, जो ये फिल्म थी मनमोहन, वो महबूब खान डायरेक्ट कर रहे थे। तो वहां पे इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती जम गई। महबूब खान और अनिल विश्वास की बहुत एकदम जिगरी, टाइट एट द जॉइंट एट द हिप, हर जगह साथ में है। आई थिंक वो एक इंटेलेक्चुअल और एक क्रिएटिव जो क्वालिटीज दोनों में थी, उन बातों को लेके there was some clicking, so they became very close friends। और ये उन्होंने एक वादा लिया था कि हम एक दूसरे के साथ ही काम करेंगे always। So इनकी जर्नी शुरू हुई with मनमोहन। 1937 में एक फिल्म आई थी जागीरदार, which was actually Anil Biswas's first cinematic success as an independent music director। That was year 1937। और उसी साल एक फिल्म सागर मूवी टोन की आई थी called महागीत, and Anil Biswas 1935 में you all must be knowing playback singing was accomplished in new theatres in Calcutta। और जो पहला प्लेबैक गाना था, by the way, I'm very proud to say my बुआ पारुल घोष was one of the singers। There were 3 singers, I think Dawlat Khan the first singer, पारुल घोष तीसरे का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, तो फीमेल सिंगर थी हरिमती। I told you, you will tell me something। Yeah, exactly। So there were these 3 singers in the first playback, and playback had not come to Bombay yet। तो बाबा कभी कहानियां बताते थे कि बड़ा अजीब होता था, सिंगिंग स्टार्स का दौर था, वहाँ केएल साइकिल थे सिंगिंग स्टार। अगर आपको गाना आता है तो आप स्टार बन सकते हैं क्योंकि आपको सेट पे ही गाना है। सेट पे ही गाने रिकॉर्ड होते थे इनटू द फिल्म साउंड ट्रैक। तो इधर कभी हम लोग आउटडोर पे जाते हैं तो आउटडोर में गाना पिक्चराइज होता है, तो कैमरा चल रहा है, साथ में पीछे ठेले पे हम लोग एक हारमोनियम और तबला रख के हम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। दिस कुड नॉट वर्क फॉरएवर, सो दे सेड he started experiment के साथ साथ में एक्चुअली बॉम्बे टॉकीज में भी ये एक्सपेरिमेंट चल रहे थे।
सरस्वती देवी के साथ, but it was Baba who first achieved, Anita who first achieved the first playback song in Mahageet, and that is why he has pioneered playback singing in the Bombay film industry. He's responsible for that. Then of course he was contracted. That was the time that studios had the contract system. You could not, compose individually outside. So Sagar movie told me, sorry, I'm not well, so I'm not able to speak also very clearly. Sagar movie told के साथ अनुबंधित थे. He composed for a lot of films in that time. 300 Days and After. बड़े अजीब और गरीब फिल्मों के नाम उस जमाने में होते थे. They had a lot of English, I think, synonyms. So there was this 300 Days and After, Bulldog, Dynamite. एक फिल्म आई थी ग्रामोफोन सिंगर. उसमें उन्होंने पहली बार जोहराबाई बाले को बाले वाली को डिस्कवर किया था, उनको प्रेजेंट किया था. तो कई लोग समझते हैं कि जोहराबाई इज डिस्कवरी ऑफ नौशाद साहब, बिकॉज Ratan was such a huge success later on, but actually it is Anita who has discovered Zohrabai Bali. That is one of his main contributions to cinema, that he has introduced a lot of singers into the film industry, given a chance to many people, and that's something which I've had to carry forward the second generation, that we like to introduce new talent and give them a platform. So many films at that time. One of the films composed and that we produced at that time was a film called Ali Baba. And in Ali Baba, he had given the very first waltz tune in Hindi cinema. Does anybody know that song? Okay, Anand will sing you a line in that song. I thought, hey, just 1 minute, I'd have to introduce Anand. I'd heard a lot about Sanjeev ji's presentation, कि वो बहुत PowerPoint और ये सब presentation जबरदस्त है. I'm a techno nerd. Even the audio insert, I have to tell Hemant ji, please जल्दी insert करना, मुझे कुछ आता नहीं. वो कंप्यूटर पे थोड़ा मैं लिख लेती हूँ और ईमेल भेजती हूँ, इतना ही मुझे आता है. और मुझे से ये सब आता नहीं. तो मैंने परसों 3 days back, Ritu had come to my house to discuss क्या बातें करोगे आप. ऐसा तो घर आ जाएगा, because I wanted to do this audio insert.